قبول کر یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرا خیال ہے کہ جو کل لوگ میرے ساتھ تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل بھی سبت کے بارے میں بات کی کہ سبت کیا ہے، اور 2-3 خاص باتیں کل ہم نے دہرائی تھیں اپنے لیے اپنے طور پر۔ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو یاد ہوگا۔ میں تھوڑا سا پیچھے جا کر دہرائی کروا دیتا ہوں کہ ہم نے شروع میں 10 احکامات کی تاریخ دیکھی تھی حمورابیوں میں سے ہو کر، یعنی 10 احکامات کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کیا تھا، اور 613 احکامات کس طرح یہودی لوگ یاد کرتے ہیں، کس طرح وہ بچوں کو رٹاتے ہیں، اور اس کا پھر خلاصہ 10 احکامات میں پایا جاتا ہے۔ پھر یسوع مسیح نے ان کو 2 حکموں میں کر دیا، اور حمورابی جو بابل کا باشندہ تھا، بابل کا بادشاہ تھا، اور اکادیوں سے اس نے حکومت لی ہوئی تھی، اس نے بھی 282 احکامات بنا کر دیے تھے۔ اور کبھی کبھی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں آج قوانین کا ڈھانچہ یہ حمورابی سے آیا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے قوانین بے شک کچھ باتیں اس کی ملتی جلتی ہیں جس وقت ہم 10 احکامات پڑھتے ہیں، لیکن 10 احکامات پوری دنیا میں چھائے ہمیں ملتے ہیں، جن سے قوانین کا ڈھانچہ، ہر ایک ملک کے قانون کا ڈھانچہ 10 احکامات سے بنا نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم اسی کو لے کر چوتھے حکم پر پہنچے تھے، جہاں پر لکھا ہے کہ تو سبت کا دن پاک ماننا۔ خروج 20 باب میں سے ہم نے یہ حوالہ پڑھا تھا، اس کی 8ویں آیت۔ اور گزری کل ہم نے خروج کی کتاب کا بھی حوالہ پڑھا، اور استثناء اس کا 5واں باب جہاں پر 10 احکامات لکھے گئے ہیں ان کو بھی ہم نے پڑھا۔ اور فرق صرف یہ تھا استثناء کی کتاب میں اور خروج کی کتاب میں کہ خروج کی کتاب میں لفظ عبرانی کا ہمیں ذاکار ملتا ہے۔ میں نے اس کا بڑا ذکر کیا، بار بار اس کو بتایا۔ ذکر کرنا، ذاکار یعنی یاد کر کے، ذہن میں لا کر، بھولنا نہیں ہے، ذکر کر کے سبت کا دن پاک ماننا۔ اور جو استثناء کی کتاب میں لفظ ہے سامار، وہ اس پر ہم نے بات کی، جس کا معنی تھا کہ محفوظ کر لینا، سنبھال لینا، اور اس پر عمل کرنا، اور اس کو دیکھتے رہنا، غور سے دیکھتے رہنا۔ یہ سامار کا لفظی معنی ہے جو استثناء کی کتاب میں عبرانی لفظ استعمال ہوا 10 احکامات کے شروع میں، سبت کے حکم کے شروع میں۔ تو مزید کل ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ جس وقت ہم عبرانی زبان میں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے، یعنی نون بھی ہے اور یہ ورب بھی ہے۔ تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ بڑھتی نظر آتی ہیں۔ اور سامار لفظ کا کل میں نے ذکر کیا کہ 468 مرتبہ یہ پرانے عہد نامہ میں پایا جاتا ہے سامار۔ زکار سے زیادہ لفظ سامار ہے جو پایا جاتا ہے، لیکن جو سبت ہے یہ لفظ پرانے عہد نامہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے۔ میں 3 خاص لفظ آپ کے سبت کے بارے میں آج پھر سے یاد دلانا چاہوں گا، جہاں سے ہم مزید سبت کے بارے میں سیکھ سکیں گے۔ تو لفظ سبت 100 سے زیادہ مرتبہ پرانے عہد نامہ میں عبرانی زبان جب ہم پڑھتے تو ہمیں ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 11 مرتبہ بطور یہ ہمیں نون یہ لفظ مل رہا ہوتا ہے، نون اسم کی صورت میں ہمیں یہ مل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور لفظ بھی اسی کے ساتھ ہے، ایک ہے سبت، ایک ہے شبات۔ کل میں نے بات کی تھی، میں پھر دہراؤں گا بھی، شبات، اور تیسرا لفظ ہے سابتون۔ یہ 3 لفظ ہمیں عبرانی زبان میں ملتے ہیں۔ تو کل میں نے ذکر کیا کہ جو شبات لفظ ہے یہ شبوہ، نئے عہد نامہ میں جا کر ہمیں شبوہ، اور پرانے عہد نامہ میں شبوہ بھی ہے۔ اور شبوہ ہم جو قسم لفظ کھاتے ہیں
उसके लिए इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ शबुआ इस्तेमाल किया गया है। कसम, हमारे पास कसम लफ्ज़ है, और एक शबुआ है, और दूसरा आला। कल भी मैंने ये बात की, अलमंदा लाम अलफ और हे, आला, ये लफ्ज़ इब्रानी का है जो कसम के लिए है, दो, शबुआ और आला। अब फ़र्क ये था कि शबुआ लफ्ज़ अदद 7 को पेश करता है, 7वां दिन, जैसे सब्त है 7वां दिन, शबुआ 7 अदद को पेश करता है। और आखिर में कल मैंने जिक्र किया था कि ये असल किसको पेश करता है, फिर मैं दोहराऊंगा। लेकिन अब क्यों कसम नहीं खानी थी, क्योंकि वो, या क्यों खाते थे कसम, तो कसम खाने के लिए वो कामिल चीज़ को दरमियान में था कि कोई कामलियत, कोई मुकम्मल चीज़ हो जिसके सामने उनका, तो क्योंकि शबुआ अदद 7 को पेश करता है जो कामिल अदद है, तो फिर वो कामलियत की कसम खाते थे। और अल्लाह का मानी होता था अपने ऊपर लानत लाना, अगर मैंने झूठी कसम खाई तो उस कसम क्या लानत मुझ पर पड़ जाए। अब शबुआ यानी जो लफ्ज़ है उसमें एक अहद पाया जाता है, एक वादा पाया जाता है, और लफ्ज़ शब्द में भी एक अहद पाया जाता है, एक वादा पाया जाता है। अब जब फिर सुने, मैं दोहरा देता हूं कि जिस वक्त हम इसको दिनों में लेते हैं, सब्त को दिनों में, जैसे इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, इसी तरह से आगे आ जाता है हफ्ता। हफ्ता हमारे पास फारसी जुबान का लफ्ज़ है ना, हफ्ता, ये हफ्तम से, हफ्तम 7 को कहते हैं, हम हफ्ता कहते हैं यानी 7, और हफ्तम से ये लफ्ज़ हमारे पास आया फारसी जुबान का। तो वो सब्त अदद 7 को कहते थे। तो जिस वक्त वो दिन का नाम लेंगे, यानी कि दिनों के जैसे नाम है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया हफ्ता, इतवार, तो ये दिनों के नाम है। तो जिस वक्त हम हफ्ते का दिन का नाम लेंगे तो ये नाउन होगा, नाम होगा, इस्म होगा, बतौर इस्म हम इसको लेते हैं कि ये नाम है एक दिन का। हमें पता है कि किसी भी चीज़ या शख्स या चीज़, शख्स वगैरह का नाम इस्म होता है। तो ये हफ्ते का दिन जब नाम हम लेंगे तो फिर ये नाउन हमारे सामने आएगा। लेकिन जिस वक्त हम इसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करेंगे, जैसे खुदा ने कहा था पैदाइश 2 बाब की 2 आयत में, खुदा ने ये कहा था, और उसने कहा 7वें दिन को उसने पाक ठहराया, मुकद्दस ठहराया, तो उसने कहा कि इसको पाक मानना, सब्त का दिन पाक मानना, जैसे हमने हुक्म में पढ़ा। तो जब हम इसको जिंदगी में अपनाएंगे यानी मानेंगे, तो फिर ये हमारा अमल होगा, ये हमारा काम होगा, इसको हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और तो जिस वक्त हम उसको अप्लाई करेंगे, मानेंगे, काम में लाएंगे, तो फिर ये फेल हो जाएगा, ये काम बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। इसलिए दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, नाउन हफ्ते वाला दिन, और फेल ये जिंदगी में अप्लाई करना। फर्क ये है, यहां पर एक फर्क ऐसा बन जाता है, ये कल भी मैंने कहा कि जाकार और समार इसम और नाउन फेल को पेश करता है। फर्क हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि हम यहाँ पर फर्क नहीं करना चाहते। लोग शब्द को एक ही अंदाज में लेकर बढ़ना शुरू कर देते हैं कि बस शब्द को पाक मानना है, इसको मानना है बतौर नाउन। पता नहीं है कि हमें फर्क रखना है कि एक सिर्फ दिन का नाम है, शब्द हफ्ते का दिन है, बस ठीक है। तो अगर हम इसम को लेकर अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो इसम है भाई, नाम है, बस किसी चीज का भी कोई नाम हो। अभी मेरे हाथ में ये बॉल पेन है, तो ये पेन है, ये इसम है। जिस वक्त इसको मैं काम में लाऊंगा, ये लिखना शुरू करेगा और लिखा नजर आएगा, फिर मैं कहूंगा कि हाँ इसकी वजह से लिखा गया, और ये जो लिखाई है ये इसकी काम है, इसका फेल है। तो बहुत लोग इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसम को और वर्ब को इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि बस हफ्ते का दिन है, जो कुछ है वह, जो कुछ क्या करना हमने इसी दिन में ही करना है, बस यही एक चीज़ है, इससे आगे पीछे हमें होना नहीं है। अगर हम इससे आगे पीछे होंगे खराबी हो जाएगी, मसला बन जाएगा। और बतौर फेल जहाँ पर इसको कहना कि रोका गया है कि रुकना है, 11 मरतबा ये बाइबल में इस्तेमाल, पुराने अहदनामा में
कि कोई काम नहीं करना, उस दिन फारग रहना है, बैठे रहना है और खुदा के कामों को देखना है, खुदा की बातों को देखना है, खुदा के मोजज़ात को देखना है। तो सिर्फ 11 मरतबा पुराने अहनामा में रोका गया है कि काम नहीं करना, सब्त के दिन को पाक माना, बस बैठना है। और बाकी 100 मरतबा इसको बतौर नॉन लिया गया है कि बस हफ्ते का एक दिन है, सब्त है और उसको लेना है। तो ये सब्त और शबात में यही फर्क है कि एक इसम है और शबात बतौर फेल लिया जाता है। अब जो तीसरा लफ्ज है साबितून, उस पर भी गौर करें तो साबितून सब्त के साथ और बुनियादी तौर पर जो उर्दू तर्जुमे में पढ़ते हैं ना कि ईद फसा को भी सब्त कहा गया, और जितनी उनकी ईदें हैं, जितने उनके त्यौहार हैं, सालाना वो साल में एक मरतबा मनाते थे, उनको भी सब्त कहा गया, लेकिन इब्रानी में वो साबितून है। साबितून उसको पेश करता है जो साल में एक दफ़ा हम सब्त मनाते हैं। और ये लफ्ज़ साबितून 6 साल तक अपनी ज़मीन की खेती करना, ज़मीन में हल चलाना, ज़मीन को काम में लाना और 7वें साल उसको छोड़ देना, पूरा साल उसको छोड़ देना, उसमें कोई हल ना चलाया जाए, कुछ भी ना किया जाए। और जिस वक्त वो पूरा साल उसको छोड़ते उसके लिए भी साबितून लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जिसको इंग्लिश में सबैटिकल कहते हैं। और हमारे यहाँ तो इतना सबैटिकल होता नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो सबैटिकल करते हैं कि वो बहुत लोगों को लंबी छुट्टी दे देते हैं, काम करवाते हैं, 5, 6, 7 साल काम करवाते हैं, उसके बाद आप क्या कहते हैं ये सबैटिकल ईयर है आपका, आप पूरा साल छुट्टी करें। कुछ मुल्कों में, कुछ जगहों पर, कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं, आज भी है। तो ये जो सबैटिकल है, सैबेतोन है, ये सालाना एनुअली जो उनकी दिन होते थे, जो उनकी ईदें होती थी, उसके लिए सैबेतोन लफ्ज़ इब्रानी जुबान में इस्तेमाल हुआ है। ये फ़र्क है सिर्फ। सबत वीकली, शबात सब्त वीकली, सबत शबात भी वही और अमली तौर पर लेना, और साबितून साल में एक मरतबा जो ईद मनाई जाती थी, ईदों को साबितून कहा जाता रहा। ये फ़र्क था। अब जहाँ से हमने बात कल छोड़ी थी वहाँ पर मैं फिर थोड़ी सी बात ले आता हूँ कि आखिर में कल मैंने कहा कि आपको याद है जिस वक्त हम सब्त को शबुआ के साथ मिलाते हैं, अदद 7 के साथ मिलाते हैं कि ये 7वां दिन है, तो अदद 7 चूंकि कामलियत का अदद है, मुकम्मल अदद है, कामिल अदद है। पता ना ये 7 अदद बनता कैसे है कामिल? जरा सोचे, कामिल अदद बनता कैसे है 7? आपको याद आ गया होगा। ये दो अदाद को सामने रखा गया। ये निमरालोजी की बात है, अदादो शुमार का जो मजमून हम पढ़ते हैं या सीखते हैं उसकी बात है। और ये अदद 3 और 4 को मिलाया गया है, 3 जमा 4, जहां से 7 बनता है। अब निमरालोजी वाले और बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी यहूदी लोग थे और मसीही लोग हैं, वो आज भी कहते हैं कि आसमान का अदद 3 है, आसमानी अदद 3 है। मसीही लोग तो एकदम कह देते हैं बाप बेटा रूल कुद्स अदद 3 को पूरा कर देते हैं, और यहूदी लोग इसको कहते हैं कि चूंकि 3 आसमान है तो कहते हैं कि यह अदद 3 आसमानी अदद है। उनके नज़दीक 3 अदद आसमान का इसलिए कि 3 आसमान है। ये दूसरा ग्रंथियों 12वें बाब में लिखा हुआ है, जब पालूस कहते हैं कि मैं किसी ऐसे शख्स को जाता हूँ जो यकायक तीसरे आसमान पर चला गया, मुझे नहीं पता कि जिस्म समेत या कैसे। तो चूंकि यहूदी 3 आसमानों की बात करते हैं तो वो कहता है कि अदद 3 आसमानी अदद है। और 3 अदद इसलिए आसमानी अदद है कि जो कुछ भी आसमानों में है, जो कुछ भी है आसमान में, पूरा का पूरा अदद 3 में आ जाता है। हर एक चीज आसमान की अदद 3 में आ जाता है। और अदद 4 जमीन का अदद है। जो कुछ जमीन पर है, समुद्रों में है, पानियों में है, ये सारा का सारा अदद 4 में आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना जिलें 4। क्यों जिलें 4 हैं? क्योंकि अदद 4 यूनिवर्सल फिगर है, आलमगीर अदद है कि जो कुछ दुनिया में, समुद्रों में, पानी में, इसी में है।
تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت نجات ہے، تو نجات پوری دنیا کے لیے پوری زمینوں اور پانیوں کے مخلوقات کے لیے جو کچھ بھی ہوگا، نجات صرف انجیل میں سے ہی مل سکتی ہے. اس لیے انجیلیں 4 ہے، یونیورسل عدد کو سامنے رکھتے ہوئے 4. اور 4 کو کس طرح ہم کہہ رہے ہیں؟ دلائل کیا ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، 4 سمتیں ہیں. 4 ہمارے علاقے میں 4 موسموں کا ذکر ہے. میں نے جب علاقہ کہا تو کچھ ایسی دنیا میں علاقے ہیں جہاں پر ایک ہی موسم ہوتا ہے. تو 4 موسم ہیں، 4 ہواؤں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، 4 شاخوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. شاخ یسوع مسیح کو کہا گیا جو یسعیاہ کی کتاب میں ہے. 4 شاخوں کا ذکر ملتا ہے. جب آپ حزقیل اور دانیل کی کتاب پڑھیں گے تو 4 جانداروں کا ذکر ملے گا. تو یہ جو عدد 4 4 4 ہے، یہ پوری دنیا پر چھایا ہوتا ہے، اس لیے 4. اور اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم چوتھے حکم کی بات کر رہے ہیں جس کو سبت کہا گیا ہے. یونیورسل عدد چوتھا حکم 4. اور 4 کو ہی جس وقت ہم لیتے ہیں تو عدد سبت شبوہ 3 جمع 4 کریں گے تو 7 بن جائے گا، کامل کا عدد بن جائے گا. 3 پرانے حکم لے لیں، 3 آسمانی عدد لے لیں، 4 زمینی عدد لے لیں، چوتھا حکم لے لیں، 3 جمع 4 کریں گے تو عدد 7 بن جائے گا جس کو سبت کہا گیا. پرانے 3 حکم اور 4 اس کے ساتھ چوتھا حکم ملا کے 4 کی بات کریں گے، عدد 7 بنے گا جو کاملیت کا عدد ہے جس کو شبوہ کہا گیا. اور یہی عدد 4 سارا کچھ اس میں پایا گیا. تو 3 جمع 4 7 کامل. اور کامل کون ہے؟ میں اکثر کامل کی بات نہیں کرتا، میں اکمل کی بات کرتا ہوں. لیکن چلیں، کامل ہمیں پتہ ہے یسوع مسیح ہے. میں جب اکمل کہتا ہوں تو ذرا میرا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں. میں متی کے انجیلی بیان پہلے باب میں سے اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جس وقت متی رسول انجیل لکھ رہے تھے انہوں نے یسوع مسیح کو کامل نہیں کہا، انہوں نے یسوع مسیح کو اکمل پیش کیا ہے. کامل اور لوگوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی، دعویٰ کیا لوگوں نے، اور لوگوں نے بھی کہتے ہیں کہ کامل. آپ آج بھی دیکھتے ہیں کامل پیر بابا، کامل فلانا فلانا پیر، وہ کامل تو ہیں، ہو سکتے ہیں کامل ہو. تو اگر یسوع مسیح بھی کامل ہے اور وہ بھی کامل ہے تو پھر فرق کیا ہے؟ تو انجیلی بیانات کے مطابق یہ ہے کہ کامل جمع کامل کمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا کمال ہے، اس نے کمال بات کی ہے. کامل جمع کامل کمال ہوتا ہے، اور کامل جمع کمال برابر اکمل ہوتا ہے. سپرلیٹو ڈگری ہے اکمل. تو متی نے یسوع مسیح کو اکمل پیش کیا ہوا ہے. کسی وقت ہم بات کریں گے، اگر نسب نامے پہ 14 14 14 کا عدد دیکھیں گے کہ 7 جمع 7 14 ہوتا ہے. اور کیوں 14 14 14 کا عدد دیا گیا 3 دفعہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں، تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ اس نے یسوع مسیح کو اکمل پیش کیا. سپرلیٹو ڈگری یسوع مسیح کو وہ پیش کر رہے ہیں کہ سب سے اوپر ہے، وہ اکمل ہے. تو اب جس وقت ہم عدد 7 کو لے کر بڑھتے ہیں تو یسوع مسیح ہمیں اکمل نظر آتے ہیں. اکمل. اب کیسے یسوع مسیح اکمل ہے؟ یہ تو ایک سبت کی بات ہے نا. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس زندگی کا آرام میں ہوں. سبت کا ایک معنی آرام بھی ہے نا، آرام کا دن، آرام کرنا، سٹاپ کرنا، رک جانا، یہ بھی ایک بات ہے. لیکن آرام کرنا، تو یسوع مسیح نے کہا تھا آرام میں ہوں. اور عبرانیوں 3 باب کے آخری آیات کو لیں اور 4 باب کے پڑھیں، پورے باب کو عبرانیوں کے خط میں سے، تو پورے آرام کو انہوں نے بیان کیا. ہمارا ایک ہی آرام ہے، اور وہ آرام وہ یسوع مسیح کو پیش کر رہے ہیں. سبت وہ یسوع مسیح کو پیش کر رہے ہیں. اور یسوع مسیح نے اپنے کو کہا تھا کہ سبت کا مالک میں ہوں، آرام دینے والا میں ہوں. اس لحاظ سے یسوع مسیح سبت ہمارے بن جاتے ہیں. اب ایک اور بات دیکھیں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ کامل اور یسوع مسیح کے ساتھ میں ان کو منسوب کر رہا ہوں سبت کو، تخلیق کے کام کو دیکھ لیں. تخلیق کا کام ہمیں پتہ ہے کہ خدا نے 6 دنوں میں تخلیق کا کام کیا تھا. اب 6 دن جس وقت ہم بائبل میں پڑھتے ہیں پہلے ہی باب میں، پیدائش پہلے ہی باب میں، تو 6 کو 2 پر تقسیم کیا گیا نظر آتا ہے. 3 دن ایک سائڈ پر ہیں، 3 دن ایک سائڈ پر ہیں. اور عبرانی
मतन के मुताबिक बड़ा वाज़ेह है। पहले 3 दिनों के साथ 12 लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बाकी 3 दिनों के साथ 8 लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। 12 का मानी होता है खलक करना और 8 का मानी होता है बनाना। तो ये तकसीम तरतीब दी गई है। आप गौर से अगर पढ़ेंगे तो पहला दिन चौथे दिन के साथ ममासत रखता है। पहले दिन रोशनी, चौथे दिन नई रकबर नई रसगर, दूसरे दिन फजा और समंदर पानी, और पांचवें दिन फजा के परिंदे और समुद्रों के आबी जानदार, समुद्रों के जानदार, पानियों के जानदार। ये पांचवें दिन खुदा ने खलक किए, पैदाइश पहले बाब की 20वीं आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो। और इसी तरह तीसरे दिन खुश्की जमीन, और छठे दिन पैदाइश पहले बाब की 24 आयत से जमीन के जानदार। तो तीसरे दिन का तल्लक छठे दिन के साथ है, दूसरे दिन का तल्लक पांचवें दिन के साथ है, पहले दिन का तल्लक चौथे दिन के साथ है। हर एक दिन का एक तल्लक है। तो सातवें दिन का तल्लक किसके साथ है भाई? क्योंकि सातवां दिन भी है जो आराम का दिन है, उसका तल्लक किसी दूसरे दिन के साथ नहीं है, वो अकेला ही है। और जिस वक्त हम ये तरतीब लिखते हैं, 3 एक साइड पे लिखते हैं, 3 एक साइड पे लिखते हैं, तो फिर 7वें को हमें दरमियान में लिखना पड़ता है नीचे जाकर, कि वो इधर वालों के साथ भी मिलता है, इधर वालों के साथ भी मिलता है, और 7वां दिन दरमियान में आता है। 3 इधर 3 इधर, 7वां दरमियान में आ जाता है, सब आ जाता है। और जब सब दरमियान में आ जाता है तो आपको पता है हमारा दरमियानी कौन है। इंसान के और खुदा में दरमियान में कौन है? जो खुदा के साथ इंसान की रफाकत को बहाल करने वाला, वो कौन है? इसलिए पुराने अहनामा में भी शब्द जो है वो यीशु मसीह की तरफ इशारा किया, और नए अहनामा में तो यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया था ना, शब्द का मालिक मैं हूं, और इब्रानी को शब्द है ही हमारा यीशु मसीह। तो हमें ये याद रखना है। इसलिए पालूस ने कहा था कि मसीही लोग वक्तों दिनों की कैद में नहीं है। हम कल बात करेंगे मजीद इस पर, वक्तों और दिनों की कैद में नहीं है। फिर शब्द क्या हमारा बनेगा जब वक्त और दिनों में निकल जाता है। हमारा टाइम चूंकि हो चुका है, तो कल मजीद हम इस पे बात करेंगे, फिर हमें ये क्लियर हो जाएगा। और जो लोग हमें किसी और तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, वाज़े हो जाएगा कि असल में हमें करना क्या है बाइबली पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, कल हमारा दुआया दिन है, कल हफ्ता है, कल हमने दुआ करनी है, दुआया दिन है। सो कल सुबह इसी तरह से जैसे हम पहले दुआ मिलकर करते हैं उसी तरह से दुआ करेंगे, और फिर हम सोमवार से अपने सिलसिले का आगाज़ करेंगे। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम एक बार फिर तेरी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन कमज़ोरी में भी आप हमें इस्तेमाल करते हैं, और जो तेरी मर्ज़ी होती है, तेरी ख्वाहिश है कि हमारी ज़िंदगी में वही मर्ज़ी तेरी पूरी होती रहे। और आज भी जो कुछ हमने सीखा तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक है। फजल दे कि हम यीशु मसीह में होकर शब्द को देखना शुरू करें। हम सिर्फ नौन की बात ना करें, हम सिर्फ इस्म की बात ना करें कि हफ्ते वाला दिन है, ये ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो वर्ब है, काम है, फेल है, हम उस पर गौर करने वाले बने। और वो फेल यही है कि हमें पाक मानना है, और पाक हस्ती सिर्फ दुनिया में यीशु मसीह होकर गुजरी है। कामिल हस्ती यीशु मसीह है, उसको हमें मानना है, उसको हमें ज़िंदगी में रखना है, जिससे हमें पाकीज़गी हासिल होती है। सो हमारी मदद कर कि ये चौथा हुक्म हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, और हम शब्द को, हकीकी शब्द को पाक मानते रहे और उसको लेकर बढ़ते रहे। जितनी ज़िंदगियों ने आज तेरे पाक कलाम को सीखा, फजल दे कि हर कोई उसको अपनी ज़िंदगी में रखे और तेरे अहकामात को लेकर बढ़ता रहे। हर एक को बरकत देना और हर एक को अपनी पनाह में रखना। ये मेरी दुआ है, सुन कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं,
آمین. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. خدا آپ سب کے ساتھ رہے جی. کل صبح ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور دعائیہ درخواستیں اپنی اپنی لے کر اور شکر گزاریاں اپنی اپنی لے کر پھر ہم خدا کی حضوری میں اپنی درخواست اور شکر گزاریاں پیش کریں گے کل صبح 7:30 بجے. خدا آپ سب کے ساتھ رہے.